नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 20 जिलों में ग्राम पंचायत की 130 और जिला परिषद की एक सीट के लिए आगामी 12 जुलाई को मतदान और 16 जुलाई को होगी मतगणना। राज्य चुनाव आयुक्त हागे कोजिन ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के नीति विहार में राज्य के पहले नवग्रह मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, नवग्रह मंदिर की स्थापना से प्रदेश के लोगों को पूजा पाठ में होगी सुविधा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, खेल मंत्री मामा नातुंग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने पासीघाट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अमल की समीक्षा। लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ योजनाओं को लागू करने पर दिया जोर। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त हागे कोजिन ने बताया कि दिसंबर 2020 में स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए प्रदेश के 20 जिलों में ग्राम पंचायत की 130 और जिला परिषद की एक सीट के लिए आगामी 12 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। सबसे अधिक चांगलांग जिले के विजयनगर एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन में कानून और व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक कारणों से रिक्त रह गए जीपीसी के 40 और जिला परिषद सदस्य के एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। नामांकन 21 जून तक किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 23 जून और वापस लेने की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है। मतदान 12 जुलाई और मतगणना 16 जुलाई को होगी। After the general elections which took place in 2000 December, we have as of now 170 vacancies. It has two components: normal vacancies due to death, due to non-availability of candidates during that election, general elections, due to rejection of nomination papers, etc. In some cases, law and order situation. Now, out of these 170s, 130 Gram Panchayat vacancies and one Jila Parishad vacancies are taken up for by-elections. The schedule of by-election will be as follows. Date of announcement is today, being 7/6/2022, Tuesday. Date of issue of notification by State Election Commission, as well as date of issue of public notice by returning officers, 14/6/2022, Tuesday. Last date of filing nomination, 21/6/2022, Tuesday. Date of scrutiny, 23/6/2022, Thursday. Last date of withdrawal of nomination, 27/6/2022, Monday. Date of poll, 12/7/2022, Tuesday. Time for poll is normally 700 hours to 1600 hours, and thereafter whoever will be available will be queued and allowed. So date of counting is 16/7/2022, Saturday.
a date by which election processes are to be completed, the 27/2022, Wednesday. A consultative meeting with the state government representatives was held recently, last week, wherein all relevant issues, including security arrangements, were discussed for ensuring a free, fair and peaceful conduct of these by-elections. The Commission had also a review meeting with all Deputy Commissioner concerned district election officers through video conferencing regarding preparedness of the by-elections. As a part of preparatory state, we also had a special summary revision of the electoral rolls of the concerned vacant panchayat constituencies, which were carried out, and final publication has also been done on 30th May 2022. Now, since elections have now been announced today, the Model Code of Conduct (MCC) of the Commission shall come into force with immediate effect in the respective jurisdiction of Jilla Parishad constituency or Gram Panchayat constituency concerned. All political parties, party workers, candidates and election officials are expected to abide by the MCC and the instructions of the Commission. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के नीति विहार में नवग्रह मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग के सहयोग से स्थापित इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, उद्योग मंत्री तुमके बागरा, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व्यूराम बागे, ईटानगर के मेयर तामे फासांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर के दूसरे और अरुणाचल प्रदेश के पहले नवग्रह मंदिर की स्थापना से प्रदेश के लोगों को पूजा पाठ में सुविधा होगी। उन्होंने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हमें भी पूरा आशा है कि अभी यहाँ ईटानगर की अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है और यहाँ में नवगढ़ मंदिर का स्थापना होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में और भी सुख, शांति और प्रगति प्राप्त हो, ये हमें पूरा आशा है और विश्वास है। अरुणाचल प्रदेश, जैसे हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक गढ़ है जिसमें हम लोग बहुत सारा जनजाति यहाँ पे एक साथ बैठा हुआ है। कुल मिला के हम लोग कहते हैं कि 24 मुख्य जनजाति और 100 से भी अधिक उप जनजाति यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अरुणाचल जैसे परिस्थिति, क्योंकि जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा एक लैंड मास है और हमारे यहाँ ट्राइब का वैरायटी भी बहुत अधिक ट्राइब यहाँ पे बैठा हुआ है और विद इन द ट्राइब का भी इतना डाइवर्सिटी है, एक ट्राइब दूसरा ट्राइब पे जाने से जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में नवग्रह का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये जो ग्राह होता है, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि किसी कम्युनिटी का पूरा ग्राह जो वहाँ चला गया, किसी का वहाँ चला जाता है तो एक ही डायरेक्शन में बैठने के लिए मैं पूरा विश्वास है कि नवग्रह से अभी अरुणाचल को काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग मिलेगा। और हम सब पूरे मंदिर, पूरे संस्था की ओर से बहुत खुश है और बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद प्रकट और दोबारा धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा है कि यह संस्थान 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और ये संस्थान नीतियाँ बनाने में सरकार की मदद करेगा। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जनजातीय त्योहारों को
एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान के अंदर करने वाला कि जो काम आज शुरुआत हुआ है उसको देश भर में हमारे आदिवासियों के बीच में तो ले जाना ही है, लेकिन साथ साथ देश और दुनिया को सामने में हम लोग को बताना है कि ट्राइबल लोगों के बारे में रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जो दुनिया भर में इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्राइब्स के बारे में एक नया जो रुचि आया है, इसमें भारत के जितने भी जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से इनका हिस्ट्री, कल्चर और डेवलपमेंट, इसको एक सूत्र में लेकर के हम लोग आगे लेके जाना है। ये हमारा दायित्व है। मैं सिर्फ ट्राइबल के एक हिस्सा होने का सिर्फ नहीं, सरकार में मंत्री होने के नाते मुझे भी ये एक महसूस होता है कि ये हमारा दायित्व है। केंद्रीय रसायन, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने सोमवार को ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सभागार पासीघाट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लोकसभा सांसद तापिर गांव, विधायक कालिंग मोयोंग और निन्नोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताइतागु, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा, पासीघाट नगर पालिका के चीफ काउंसिलर ओकियम मोयोंग बोरांग और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में फिजिकल और वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। बहुत ही महत्व दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबों के घर मिला हुआ था, जो गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर जो उचित गैस सिलेंडर और स्टोव मिला था, जो गरीब का घर को शौचालय मिला था, जो गरीब का घर को नल से जल का योजनाओं के ओर से पानी मिला था, जो गरीब का घर को उचित में करंट मिला था, ऐसे सारे योजनाओं का लाभार्थियों का घर को जा कर के स्वयं हमने उन परिवारों का भावनाओं को देखने के लिए गया था। तो वो गरीब परिवार मोदी सरकार के इस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऊपर इतना खुश है, जो 8 साल में यहाँ पर विकास हो रहा है, वो स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था कि इस अरुणाचल प्रदेश और पासीघाट देश के अन्य प्रदेशों के साथ में विकास भी हो रहा है और गरीब अपना आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उसको उत्थान भी हो रहा है। आईपीएस अधिकारी शरद दराडे, वेस्ट सियांग, ताके कोयांग शियोमी, अभिमन्यु पोसवाल कुरुंकुमे, सचिन के सिंघल लोहार सुबनश्री और वरिष्ठ एपीपीएस अधिकारी डी गौथुम्बू और मिंजोम एते लोहित जिले के एसपी होंगे। राज्य सरकार ने 8 आईपीएस और 2 एपीपीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए अमित रॉय को एसपी सिक्योरिटी एंड टेलीकॉम, सुधांशु के धम्मा को डीजीपी का ओएसडी, अनंत मित्तल को एसपी एसआईसी, आपांग तामुत को राज्य पुलिस मुख्यालय में एआईजीपी के पद पर तबादला किया गया। राज्य सचिवालय ईटानगर के सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को सोमवार को डिजिटल गवर्नेंस के तहत ई कैबिनेट सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट अफेयर्स द्वारा एनआईसी के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 65 नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पाके केसांग
के सेजोसा में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के दौरान ई कैबिनेट सिस्टम का शुभारंभ किया था और 24 फरवरी 2022 को राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट पोर्टल का उपयोग करते हुए ई कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। हरियाणा के पंचकूला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 18 प्रतियोगिता के महिला वर्ग में 59 किलो भार वर्ग में बालो यालाम ने कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले बालो यालाम को बधाई दी है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज गोहपुर मार्केट में सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लोगों के आवागमन के लिए निर्धारित क्षेत्र में दुकान न लगाने और जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के अनुसार ही सब्जियों, फलों, मीट, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने की अपील की। जो लोग यहाँ बैठा हुआ है लाख हज़ार का तादाद में यहाँ बेच रहा है वो पूरा सड़क पे बैठा हुआ है और ये एक फास्ट डेवलपिंग एरिया है, चिंपू एरिया जो बोलते हैं। ये चिंपू यहाँ से ये जुटे जाता है, यहाँ से गोपुर जाता है। ये 3 नाली ये एक जगह है जहाँ अभी ट्रैफिक भी बहुत हालत ख़राब है। अभी आप देखा होगा पीछे में पूरा सड़क पे दुकान आ गया है। आज हम लोग मीडिया से पता चला, इसलिए मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुरंत हमारा ये चिंपू थाना का ऑफिसर को बुला लिया और मेरा साथ जो भी मेरा यूपीएफ लोग है और हमारे जो स्टाफ है सभी और मजिस्ट्रेट को लेके हम यहाँ। अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमर सांगनो ने अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो की मौजूदगी में राज्य के वर्किंग जर्नलिस्ट को इंटरनेशनल प्रेस कार्ड प्रदान किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसे राज्य के कार्यरत पत्रकारों के लिए जारी किया है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल प्रेस क्लब विश्व के 100 से अधिक देशों में मान्य है। Is being issued to all the affiliate bodies and organizations of IFJ. Since I've been to Oman to attend World Congress, IFJ World Congress, I brought this IPC card to India along with my president and secretary, and today we are distributing it to our esteemed member who had applied for this card. Indeed, this card is one of the most instantly and reputable, recognizable identification card of working journalists across the globe. This card was launched first in 1927 in IFJ World Congress, and this card is considered to be one of the most effective working journalist cards across the globe, which is widely accepted by more than 130 countries. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।